Hello guys, welcome back to this part 5 of strength of material. So till last lecture what we have seen the stress matrix, okay, 3D stress matrix. In this particular lecture we are going to see we are going to continue the same topic what we have covered in the last lecture, because it was not completed. We have seen only the half part of it, that is 3D stress matrix. Now we will see the 3D strain matrix. Okay. Meanwhile, if you have any doubt, you can put it in the chat box. I have the chat box in front of me, I can see, and then definitely will assist you with your doubt. Okay. So now let us start. So just a recap of the last lecture, we have seen a 2D stress matrix like this, और उससे पहले हमने एक 3D स्ट्रेस मैट्रिक्स देखा था जिसमें हमने ये देखा कि द डायगोनल एलिमेंट्स आर नथिंग बट द नॉर्मल स्ट्रेसेस. तो ये 3/3 में टोटल 9 components are there, 9 stresses are there. Out of 9, 3 these diagonal stresses are nothing but the normal stresses, and then rest are nothing but the shear stresses. ठीक है, बाकी के 6 जो है shear stress हैं और ये 3 जो है normal stress है. ठीक है, इससे रिलेटेड हमने 3D डायग्राम बनाया था. दिस वॉज द डायग्राम जिसमें कि हमने स्ट्रेस को दिखाया था कि दिस एक्स इज नथिंग बट डिफाइंस द प्लेन एंड देन अनदर एक्स इज नथिंग बट द डायरेक्शन. ठीक है, with this we will continue now for the strain matrix. The diagram remains same जो मैंने last lecture में बताया था, same diagram. We will not waste the time again to draw the diagram. तो now it comes as a strain tensor. ठीक है, टेंसर क्वांटिटी क्या है वो मैंने बताया था कि जिसमें एक मैग्नीट्यूड एंड देन 2 डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, या एक वैल्यू एंड देन और प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी. तो ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि स्ट्रेन का टेंसर था, सिमिलरली वी हैव द स्ट्रेस टेंसर ऑल्सो. सो strain tensor, yeah, we can say that the 3D strain matrix. Now in this basically we have strain matrix is equal to, ठीक है, जैसे हमने वहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स देखे थे, नॉर्मल स्ट्रेस थे, तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स आर नथिंग बट द नॉर्मल स्ट्रेन. सो एप्सिलॉन xx, दिस इज एप्सिलॉन yy, एंड हियर वी हैव एप्सिलॉन zz. ठीक है, ये हुआ नॉर्मल स्ट्रेन. नाउ वी विल टॉक अबाउट द we will talk about the shear strains. ठीक है, तो shear strain में क्या है, this is phi xy divided by 2, this is phi yx divided by 2. ठीक है, here we have phi xz by 2, here this is phi zx by 2. What is the logic of this by 2? I'll just explain you. Here this is phi yz divided by 2, here this is phi zy divided by 2. ठीक है, ये हमारा टोटल स्ट्रेन मैट्रिक्स हुआ. अब इसमें अगर हम टोटल shear strain देखते हैं, ठीक है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टोटल shear strain in xy plane इज इक्वल्स टू, मैंने बोला xy प्लेन के लिए. सो अगर xy प्लेन के लिए हम इंटरेस्टेड है तो दिस इज इन xy प्लेन और दिस इज ऑल्सो इन द xy प्लेन. ठीक है, hence we are going to sum them up and we will say that it is phi x divided by 2 plus phi of yx divided by 2. ठीक है, now this xy and yx, what it is, so we can mention over here, this is nothing but, what is this, this is from x direction towards y. ठीक है, similarly if I talk about this, this is from y towards x. ठीक है, ये x towards y है, दूसरा वो y towards x है. Now this is equals to nothing but phi xy.
सो दिस वी कॉल इट एज टोटल शीयर स्ट्रेन एज 5xy, इसलिए उसको यहाँ पर हाफ हाफ लिखा गया है, ठीक है. दैट इज द रीजन वी मेंशन इट एज हाफ हाफ, so that if it is given as a matrix to us, we will add these together and that becomes the total shear strain in that plane. Similarly zx plane में we have to add these two, similarly yz plane में we have to add these two, ठीक है. Now we'll proceed further. This completes our strain matrix, ठीक है. Now अभी जैसे हमने एक टेंसर देखा, स्ट्रेन टेंसर देखा और स्ट्रेसेस के टाइप देखे थे. सिमिलरली विल सी द स्ट्रेन टाइप्स, ठीक है. सो हियर इट कम्स एज अ स्ट्रेन. स्ट्रेन के अंदर जैसे हमने मैट्रिक्स में देखा, वी हैव गॉट लीनियर स्ट्रेन, एक हमारे पास लीनियर स्ट्रेन आया और दूसरा हमारे पास शेयर स्ट्रेन आया, ठीक है. ऐसे ही हमने ये देखे थे, स्ट्रेसेस देखे थे, ठीक है. ये 5 हो गया. सिमिलरली दिस लीनियर स्ट्रेन कैन बी प्लस एंड माइनस डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज टेंसाइल स्ट्रेन, लंबा किया, एलोंगेट किया, ठीक है, और इट इज कंप्रेसिव स्ट्रेन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज shear strain. Again in this shear strain we are representing is with the 5, so we can say that it is nothing but a total angular deformation. ठीक है, ये टोटल हमारा एंगुलर डिफॉर्मेशन है. उसमें क्या हो सकता है, ये भी अगेन इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव. वो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा, वी विल सी नाउ. देखो, let us say initially, let us say we have, ठीक है, एक इनिशियल हमारे पास एक ऐसा ब्लॉक है. सो वेयर इन द x डायरेक्शन इज हियर, दिस इज द x डायरेक्शन एंड हियर इट इज y डायरेक्शन, ठीक है. ये ऐसा x एंड y डायरेक्शन हो गया. अब क्या हुआ, जब डेफॉर्मेशन हुआ, एंगुलर डेफॉर्मेशन होने के बाद, अब लेट अस अज्यूम कि इसका शेप इस तरीके से हो जाता है. ठीक है, ये शेप हो गया कब, जब एंगुलर डिफॉर्मेशन की दोनों साइड से कुछ हमारे पास शेयर स्ट्रेसेस या नॉर्मल स्ट्रेसेस आई होंगी. पहले ये बिना स्ट्रेस के ये हमारे पास ऐसा था, उसके बाद स्ट्रेस लगने के बाद ये ऐसा हो गया, इसका शेप डिफॉर्मेशन हो गया. नाउ विद दिस व्हाट वी कैन से, दिस is nothing but 5/2. This angle deformation is also nothing but 5/2. इन XY प्लेन, मतलब अगर मैं प्लेन की बात करूँ, ये टोटल प्लेन एक पेपर पे कितना एंगुलर डिफॉर्मेशन आया, ये ऐसे हो गया टोटल 5/2 यानी 5 का डिफॉर्मेशन आया. तो स्ट्रेन इन द XY प्लेन इज नथिंग बट, इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज 5/2 प्लस 5/2 टुगेदर इट इज 5. नाउ द रिमेनिंग इंटरनल एंगल इज, दिस इज 90 माइनस 5, ठीक है. ये रिमेनिंग इंटरनल एंगल है. अभी देखो, उसके अंदर हमने पहले क्या देखा था, हमने देखा था 5xy, ठीक है, ये देखा था हमने 5xy हियर. सो दिस xy इज नथिंग बट फ्रॉम x टूवर्ड्स y, सो आई कैन, सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. सो फ्रॉम x टूवर्ड्स y, ठीक है, hence we can call this as 5xy/2. Similarly, here we are going from, in this particular case, we are going from y towards x. So I can call this as, ये जस्ट एक नॉमेनक्लेचर कि इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग है, बट दोनों को ऐड करके टोटल एक प्लेन में एंगुलर डिफॉर्मेशन हमारे पास 5xy.
ठीक है, चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। हम क्या कहते हैं, नाउ द डिफॉर्मेशन इज फाई, जो अभी हमने बोला, दैट डिफॉर्मेशन इज नथिंग बट नोन एज shear strain, and that is in our case it is positive shear strain। ठीक है, वो कैसे हुआ positive shear strain? So we can mention with the star mark over here so that we can remember क्या, when angle is reduced, जब एंगल रिड्यूस होगा तो हम वो पॉजिटिव लेते हैं। तो पहले 90 एंगल था, वो 90 से घट के 90-5 हो गया, तो वो एंगल रिड्यूस हुआ, हेंस दिस स्ट्रेन इज पॉजिटिव। ठीक है, अब एक ऐसे ही नेगेटिव स्ट्रेन का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो इट बिकम्स लाइक, लेट अस से आई हैव अ वाई एक्सिस ओवर हियर, सिमिलरली आई हैव अ एक्स एक्सिस ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे y एंड दिस इज x। सो नाउ I can write this as x and this as y. Again I'll make a block, initial block over here. 1 second. So I'll just make a initial block over here, this. Now it is looking rectangle। ठीक है, ये ऐसा। अब जब इसके अंदर डिफॉर्मेशन हुआ, और डिफॉर्मेशन होने के बाद लेट अस से दिस बिकम्स इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, ये अगर इस फॉर्मेट में बन गया एंड वी गेट दिस एज, यहाँ पर 5/2 एंड दिस इज ऑल्सो 5/2। अब जो न्यू एंगल बना, दैट न्यू एंगल इज नथिंग बट दिस एंगल, एंड दिस बिकम्स 90 + 5। तो अब क्या हुआ, एंगल इंक्रीज कर गया। जब एंगल इंक्रीज किया तो दिस इज नथिंग बट द नेगेटिव स्ट्रेन। ठीक है, आई होप अभी पता चला होगा नेगेटिव स्ट्रेन कैसे लेना है एंड पॉजिटिव स्ट्रेन को हमें कैसे लेना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन दूं विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस, तो बेसिकली हम कैसा देंगे इसको, कि जब स्ट्रेस जैसे आएगा तो वहाँ से स्ट्रेन कैसा मिलेगा हमें। नाउ वी कैन से दैट if we have got this particular case, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रेस का टाइप होगा ये एंगल को रिड्यूस करेगा, एंगल को रिड्यूस करेगा, तो यहाँ से हमें पॉजिटिव स्ट्रेन मिलेगा। दिस लीड टू द पॉजिटिव shear strain। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ सोच सकते हो, जब हम एग्ज़ाम में आगे SFD BMD बनाते हैं, या जब हम सोम में SFD BMD बनाते हैं, तो इस टाइप के स्ट्रेस को, मैं स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ अभी, इस टाइप के स्ट्रेस को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव स्ट्रेस लेते हैं। तो अगर याद रखना हो तो ऐसे याद रख सकते हो कि नेगेटिव shear स्ट्रेस जो नोमेनक्लेचर, स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर है, नेगेटिव shear स्ट्रेस इज नथिंग बट गिव्स द पॉजिटिव shear strain। ठीक है, ये याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज लॉजिक क्या है, लॉजिक है एंगल रिडक्शन की बात है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं वाइस वर्सा देखूँ इसका, तो वाइस वर्सा कैसा है, आई विल जस्ट टेक द कॉपी ऑफ इट। ठीक है, नाउ दिस इज द पॉजिटिव, ठीक है, ऊपर नेगेटिव स्ट्रेस था तो पॉजिटिव shear strain आया, ये पॉजिटिव shear स्ट्रेस का पैटर्न है, तो यहाँ पर नेगेटिव shear strain आएगा। सो आई कैन से दैट इट इज नेगेटिव shear strain। ठीक है, तो आई होप अभी तक ये क्लियर होगा यहाँ पे। नाउ
अच्छा, जहाँ पर दो दो साइड्स ना चेंज होके सिंगल साइड चेंज हो रहा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम शेयर का जब भी एग्जाम्पल देखा होगा, इस तरीके का एग्जाम्पल देखा होगा कि लेट अस से वी हैव अ फिक्स्ड ठीक है, ऐसा एक हमारे पास फिक्स्ड पैटर्न है यहाँ पर, बेसिकली समथिंग लाइक अ फ्लोर, ठीक है, एक कोई फ्लोर है, उसके ऊपर अभी हमारा यहाँ पर कोई ठीक है इस तरीके का ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक रखा है तो इसके ऊपर हमने कोई शेयर फोर्स लगाया, शेयर फोर्स लगाने के बाद इसका शेप चेंज होके ऐसा हो गया, ये इसका डिफॉर्मेशन आया, जब इसका डिफॉर्मेशन ऐसा आया, सो वी कैन सी दैट देयर इज ओनली वन फेस विच इज चेंजिंग, दैट इज नथिंग बट वन एंगल एज फाई इन वन प्लेन, ठीक है, तो ये सिर्फ फाई ही हो रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल जब मैं स्ट्रेन की बात करूँगा कि दैट हैज़ गॉन डेल्टा एक्स एंड दिस इज नथिंग बट वाई, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई वाई इज नथिंग बट दिस इज shear strain, for a small angle we can take tan theta equals to theta, ठीक है, so similarly we can say that tan phi equals to phi, this is how we can define. Now we can mention a note over here, क्या दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, अभी उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं लगता बट व्हेन यू गो फॉर द हायर स्टडीज़, ठीक है, जैसे लेटेस्ट से तुम या हायर स्टडीज़ भी छोड़ो, बीटेक में भी तुम्हारे कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल यू स्टडी एफईएम, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में यू स्टडी प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम एंड प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम, ठीक है, ये उसी से रिलेटेड एक नोट बता रहा हूँ क्या कि even though the stress system is a plane stress system, but plane stress system can give us the space strain, that is 3D strain it can give us. So we can mention over here कि plane stress system may give a space strain system, ठीक है, मैं अभी इसमें बेसिकली आई एम नॉट गोइंग इन टू दिस इन डिटेल, द रीज़न इज इट इज़ ऑल्सो इटसेल्फ अ बिग कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो गेट में नहीं है, ठीक है, और इन जनरल हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉलिड मैकेनिक्स, उसके अंदर नहीं आता, दैट कम्स इन द फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज प्लेन स्ट्रेस, ठीक है, जस्ट वन लाइन में प्लेन स्ट्रेस आई विल एक्सप्लेन यू। हमने ऐसा एक डायग्राम बनाया था, ठीक है, और इसके ऊपर हमने स्ट्रेसेस बताए थे। सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन स्ट्रेस, तो यहाँ पर सिग्मा एक्स आ गया, यहाँ पर सिग्मा वाई आ गया, दिस इज जेड डायरेक्शन, और यहाँ पे सिग्मा जेड जो है ज़ीरो है। तो हमारे पास सिर्फ अगर मैं स्ट्रेस की बात करूँ, प्लेन स्ट्रेस मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ एक प्लेन एक्स वाई प्लेन में ही मेरे पास स्ट्रेस होगी, जेड प्लेन में मेरे पास कोई स्ट्रेस नहीं होगी। एक्स वाई प्लेन में शेयर भी आएगा तो चलेगा, दैट इज़ फाइन, बट इन वन प्लेन ओनली, ठीक है, इट कुड बी एक्स वाई प्लेन और इट कुड बी वाई जेड प्लेन और इट कुड बी जेड एक्स प्लेन, कोई भी प्लेन हो सकता है, बट वी विल गेट ओनली वन टाइप, इन वन प्लेन ओनली विल गेट द स्ट्रेस, ठीक है। नाउ so with respect to this diagram, what we can say, in above case stress is two dimensional, so it y direction, ठीक है, x and y direction में two directional है, but strain is 3 dimensional in x, y and z direction all. It means plane stress system may produce space
स्ट्रेन सिस्टम, ठीक है, ये इतना हमें स्पेस स्ट्रेन दे सकता है, ठीक है। अभी जो हमने देखा, लेट अस नाउ सी वेदर वी हैव अंडरस्टूड और नॉट। वी विल सी ए न्यूमेरिकल, ठीक है, हम इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, विल सी कि वेदर वी हैव अंडरस्टूड दिस स्ट्रेस मैट्रिक्स और नॉट। सो नाउ द क्वेश्चन इज अ स्ट्रेन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? स्ट्रेन मैट्रिक्स है, ना कि स्ट्रेस मैट्रिक्स। स्ट्रेन मैट्रिक्स फॉर एन इलास्टिक मटेरियल इज, ये हम नीचे एक स्ट्रेन मैट्रिक्स दे रहे हैं। स्ट्रेन मैट्रिक्स फॉर एन इलास्टिक मटेरियल इज गिवन बिलो इफ शीयर मॉडुलस, ठीक है, जैसे यंग मॉडुलस होता है ऐसे ही शीयर मॉडुलस G इज 100 GPa गीगा पास्कल है, देन shear stress in XY plane will be, ठीक है, हमें टो XY फाइंड आउट करना है और ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास ABCD। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास कि 400 MPa, ठीक है, और 500 MPa और 800 MPa और इट कुड बी 1000 MPa, ठीक है। और हम स्ट्रेस अब स्ट्रेन मैट्रिक्स देखेंगे। तो स्ट्रेन मैट्रिक्स कैसा है हमारा? 0.003, 0.004, 0.006, 0.004, 0.008, 0.003, yes, 0.006, 0.00 and 0.006। सो ये हमारा स्ट्रेन मैट्रिक्स है, ठीक है। You can probably try this, those who will be seeing it at later stage. I am just solving it, I don't want to just skip this, but at later stage you should try it by yourself, ठीक है। or you can give a thought in your mind कि how you are going to solve, and then we will see that whether are we on the same page or not, ठीक है। now having understood this particular strain matrix, अभी हमें निकालना क्या है, we will see that, ठीक है। इसमें बोला है ये हमें स्ट्रेन मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, स्ट्रेन मैट्रिक्स दिया है और साथ में ये हमें शेयर मॉडुलस 100 GPa का दे दिया। हमसे पूछा क्या है? टो XY पूछा है। तो अब जब हमें स्ट्रेन मैट्रिक्स दिया है तो एक पर्टिकुलर प्लेन की अगर मैं बात करूं, XY प्लेन की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास रिलेशन क्या होता है। हमें पता है कि स्ट्रेस टो XY डिवाइडेड बाई स्ट्रेन इज नथिंग बट द मॉडुलस। जैसे हम सिग्मा बाय एप्सिलॉन करते हैं तो अर्ली शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन इज नथिंग बट द स्ट्रेन मॉडुलस, ठीक है। हमें यहाँ से चाहिए क्या है? टो XY, सो वी कैन से दैट G इंटू 5XY, ठीक है। अब हमारे पास G ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें 5XY देखना है, बट कहाँ से? फ्रॉम स्ट्रेन मैट्रिक्स, ठीक है। स्ट्रेन मैट्रिक्स से हम 5XY निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट द दिस टो XY। नाउ G का वैल्यू 100, G का वैल्यू दिया है 100 GPa। हमें चाहिए कि इसमें आंसर MPa में चाहिए, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस कम्स इनटू 10⁻³ सो दैट नाउ इट बिकम्स इन MPa। Now 5XY is nothing but we need to now add these two, जैसा कि हमने पहले देखा था, that is the only thing in this। so we have to take this value and then we have to take this value, so this gives us the total strain, ठीक है। खाली 0.004 मत ले लेना, so we have to add this and then 5XY becomes 0.008। now here it becomes then 800 MPa, that is what टो XY is, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का पर्पस क्या था? इस क्वेश्चन का पर्पस था कि अगर स्ट्रेन मैट्रिक्स तुमको दिया है और तुमसे शेयर स्ट्रेन पूछा जाए तो ऐसा तो नहीं है कि खाली तुम एक वैल्यू ये खाली 0.004 लेके और न्यूमेरिकल को सॉल्व करो।
So the strain in one particular plane is nothing but you have to add these two. Similarly अगर मैं xz की बात करूँ you have to add these two, मैं yz की बात करूँ तो you have to add these two. ठीक है. Now अब हम देखते हैं differential form of the strain. Sometime what happens, we have to find out the strain using the differential format. So we will see now differential form of strain. ठीक है. Now let us say we have XYZ system. So this is X, this is Y and this is Z and this is origin. ठीक है. XYZ सिस्टम है. यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक रैंडम शेप का कोई भी एक बॉडी हो गया जिसमें एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट X, Y, Z हमें है. ठीक है. सो वी कैन से दैट दिस P इज नथिंग बट P इज एनी पॉइंट ऑन बॉडी. ठीक है. नॉट नेसेसरली CG. ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं CG की बात कर रहा हूँ. इट कुड बी एनी पॉइंट ऑन द बॉडी. ठीक है. उसकी बात कर रहा हूँ. Now what we are saying that if before loading हमने loading नहीं लगाया, loading position of point P is X, Y, Z. ठीक है. बिना लोडिंग लगाए हमारा जो पॉइंट P है उस पॉइंट का जो पोजीशन है वो X, Y, Z है. फिर हमने उसके ऊपर लोडिंग लगाया. ठीक है. लोडिंग लगाने के बाद व्हाट वी आर सेइंग दैट इफ ऑन लोडिंग पॉइंट P मूव्स, पॉइंट P मूव करता है बाय U, V, W, UV and W in X, Y, Z direction respectively. ठीक है. व्हाट वी आर सेइंग, जब लोडिंग लगाया तो पॉइंट P जो है U मूव कर गया X में, V मूव कर गया Y में और W मूव कर गया Z में. इतना वो मूव कर गया. ठीक है. इतना मूव होने के बाद now we will define our linear strain. Then linear strain is given by क्या क्या हो जाएगा लीनियर स्ट्रेन की एप्सिलॉन xx. मैं एप्सिलॉन xx की बात कर रहा हूँ लीनियर स्ट्रेन की. दैट विल बी डो u, जितना वो u डायरेक्शन में मूव, बेसिकली जितना x डायरेक्शन में मूव किया उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. सो वी विल कॉल दिस एज लीनियर स्ट्रेन इन x direction. ठीक है. Similarly we can define linear strain in y direction dou v by dou y. Similarly epsilon zz is nothing but dou w by dou z. ठीक है. So we can say that this is linear strain in y direction, this is linear strain in z direction. ठीक है. तो हमने linear strain define कर दिया. Now we will define the shear strain at point P. ठीक है. shear strain at point P. ठीक है. पॉइंट P पे हम shear strain को कैसे डिफाइन करेंगे. सो फर्स्ट लेट अस से वी आर टॉकिंग अबाउट इन XY प्लेन. XY प्लेन में जैसे मैंने phi xy ऑलरेडी एक्सप्लेन किया. व्हाट इज phi xy इज इक्वल्स टू phi xy, चाहे हम phi xy बोले चाहे yx बोले, दोनों सेम रहेंगे. ठीक है. इज इक्वल्स टू u का
y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन u का y के रेस्पेक्ट में, देन ओनली यू विल गेट द एंगल, प्लस v का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, देन यू गेट द कंप्लीट एंगल। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो वी विल जस्ट गो बैक, यहाँ पर चलते हैं जहाँ हमने shear एक्सप्लेन किया था, जैसे यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सो व्हाट वी आर सेइंग दैट u by y, dou u by dou y is nothing but your this angle, or in fact if I'll go up, so I can say over here this is nothing but, now in this particular direction if I am seeing, now this is what, this is delta y, this is x, तो y के डायरेक्शन में हमारे पास क्या था, डो v बाई डो x, तो ये एंगल मिल जाएगा। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट दिस, दिस इज u, सो डो u बाई डो y, ये y हो जाएगा। ठीक है, सो डो u बाई डो y इज नथिंग बट दिस एंगल, व्हेन आई एम एडिंग दीज टू एंगल, दिस वन एंड दिस वन, आई गेट द कंप्लीट shear strain। ठीक है, तो उसको डिफरेंशियल फॉर्मेट में हमने यहाँ पर लिखा है, दोनों एंगल को ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली इफ आई राइट इट एट सेकेंड पोर्शन, अभी आप अपने आप से लिख सकते हो फाई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी फाई ऑफ वाई जेड, वाई एक्स तो लिखा है हमने, फाई वाई जेड इज इक्वल्स टू फाई जेड वाई इज इक्वल्स टू, डो वी को हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जेड के रेस्पेक्ट में, प्लस वाई के रेस्पेक्ट में कर देंगे। Similarly, third and last, if we'll see, phi zx is equals to phi xz is equals to, u को हम z के रेस्पेक्ट में कर देंगे and w को हम x के रेस्पेक्ट में कर देंगे। That's how we can add two angles and we will get the strain in those particular plane। ठीक है, now इसके साथ हमारा बेसिकली क्या हुआ, strain in the differential format we have seen। Now we will see one example on this, और एक एग्जाम्पल करने के बाद then that concludes our complete topic कि stress matrix and strain matrix। ठीक है, तो अब हम एक इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, बिकॉज बिना न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस इज इनकम्प्लीट। ठीक है, थियरी देखी हमने, नाउ वी विल सी द न्यूमेरिकल पोर्शन क्वेश्चन। ठीक है, आई होप इसके बाद तुम ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे। यू कैन पॉज दिस वीडियो इन बिटवीन, बिकॉज आफ्टर दैट वीडियो आई एम गोइंग टू स्टॉप इट, सो you can pause it and you can see it later on, but this question you should try it by yourself in a plane strain situation। प्लेन स्ट्रेन, जैसे प्लेन स्ट्रेस था ऐसे ही अगर एक ही सिंगल प्लेन में हमारे पास स्ट्रेन है, वी कॉल इट एज प्लेन स्ट्रेन सिचुएशन। in xy plane, the displacement at a point is in x and y direction are given as। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, प्लेन स्ट्रेन सिचुएशन में एक्स वाई प्लेन में डिस्प्लेसमेंट एट अ पॉइंट इन एक्स वाई डायरेक्शन आर गिवन एज। कैसे दिया है उसने कि u इज इक्वल्स टू -2x + 8y इंटू 10⁻⁻6 यूनिट, जो भी यूनिट रहेगा। सिमिलरली v इज इक्वल्स टू -3x + 5y इंटू 10⁻⁻6 यूनिट। What is the shear XY plane? ठीक है, shear क्या होगा वहाँ पर। So basically we can say A, B, C and D। हमारे पास चार ऑप्शन दिए A, B, C, D। So option 1 is 9 × 10⁻⁻6, 7 × 10⁻⁻6, 5 × 10⁻⁻6 and 3 × 10⁻⁻6। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमें shear देखना है एक्स वाई प्लेन में, यानी हमें देखना है फाई ऑफ एक्स वाई क्या होगा। सो हमें पता है, जैसे हमने इससे पहले फॉर्मूला देखा था कि u को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो एंड v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, दोनों को ऐड कर देंगे, नीचे कर लेना,
डो यू बाई डो वाई, वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे पास आ गया 8 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। और यहाँ पे डो वी बाई डो एक्स किया तो -3 इंटू 10⁻⁻6। अब दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, डो यू बाई डो वाई कितना आया, डो वी बाई डो वाई आया -3 इंटू 10⁻⁻6। Now after adding these together, so I have 5 into 10⁻⁻6 unit. So basically the option is C. So C is correct answer. ठीक है। So with this, the strain tensor as well as the stress tensor is completed. We'll see you in the next lecture. If you like the content, please do thumbs up the video and do subscribe the channel. And then if you have any doubt, you are always welcome to put it in the chat box. Thank you. All the best. See you on Saturday, 12 o'clock.